Hello children, today's chapter is class 8 science coal and petroleum. Coal and petroleum, as you all know from very beginning, that they are fuels. Fuels का मतलब होता है those materials which when burned produces enormous amount of heat and light that can further be used by man, right? So coal and petroleum. In this context, I have made a concept map, as you can see, and have tried to include every topic and subtopic which is there in the chapter. And meanwhile, if some portion is left, I can readily and ready-made give you some definitions for that. So let us start. So we know that there are resources all around Earth which are one part is natural and the another part is man-made. So when we talk about natural resources, as you can see here in this context, we can see that these natural resources can be categorized in exhaustible and inexhaustible or non-exhaustible sources. So let us discuss first what is the exhaustible and what are the inexhaustible sources, natural sources. So these natural resources are inexhaustible. That means some naturally occurring substance like air is there, water, sun, soil, wildlife, mineral, coal, petroleum, gases, different type of gases which are there in the atmosphere, which is very useful to us, and some of the gases which lie beneath the ground. All these include the natural resources. So some of them are inexhaustible. The word says inexhaustible means that is not going to end till eternity. इसका समाप्त होने का कोई डेट नहीं है. And for example, it is written here, the air, the water and the sun, you can well see here, right? And then the exhaustible sources of energy, जो कि अब हमको इस वाले कंटेक्स्ट में पढ़ना है कि ये exhaustible sources of energy क्या होते हैं. So here we can see that those natural resources, फर्स्ट चैप्टर ऐसा फर्स्ट वाली पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन नेचर, ये बहुत लिमिटेड होते हैं. दूसरा कि ये आराम से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एक बार हमने यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म. और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको बनने में 10 और 20 नहीं 100,000 और इवन 10,000 साल भी लग जाते हैं. ओके, सो ये सारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो है उनमें से एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा. ये तो बात हुई एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की. अब ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो है ये अगेन दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है. वी कैन सी हियर the non-renewable source of energy and the renewable source of energy. Let us first discuss about the renewable source of energy. Renewable source of energy means वो सारे sources जो कि यूज़ होके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद यदि हम चाहें तो उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट, वी कैन हैव डिफॉरेस्टेशन ऑल अराउंड द अर्थ, बट इफ़ वी विश वी कैन रिस्टोर द फॉरेस्ट या वी कैन रीफॉरेस्ट every part or every corner of earth within a time span of 10 years or 15 years. So that can be replenished in certain period of time are called the renewable sources of energy. So do you understand all these things? And then the most important through which we are going to deal with this chapter is the non-renewable source of energy. So these non-renewable sources of energy, they cannot be replenished replenished once they are finished, and the generations wait for the replenishment process of these type of sources of energy, because they require 10,000 or millions of years ago to replenish themselves. इसी कैटेगरी में पढ़ना है हमें फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल वो सारे फ्यूल्स हैं
जो कि ज़मीन के अंदर किसी न कोई एक ख़ास प्रक्रिया से हज़ारों लाखों साल के सतत क्रिया के से ये बने हुए हैं। सो ये फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इसमें दो पार्ट्स हैं, देयर इज़ अ फॉसिल पार्ट एंड देन अगेन देयर इज़ अ फ्यूल पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल का मतलब जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स के दबे हुए ज़मीन के अंदर में दबने से बनता है, जिसको ज़मीन को खोद के किसी भी तरह से ड्रिल करके खोद के निकाला जाए, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स, मरे हुए से रिलेटेड। एंड फ्यूल वो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या वो मरे हुए पार्ट्स प्रकृति के जो कि फ्यूल के रूप में हम यूज़ करते हैं। फ्यूल का मतलब ऑल दोज मटेरियल्स विच वी बर्न टू गेट लाइट एंड हीट टू यूज़ इट इन वेरियस पर्पसेस। अब आते हैं हम अपने फ्यूल के टॉप पे। जो फ्यूल होता है उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सब थीम दिया हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है? सो आइडियल फ्यूल का मतलब वो सारे फ्यूल, हर तरह के फ्यूल होते हैं हम जानते हैं, हम कंडे भी जलाते हुए देखते हैं, लकड़ियाँ भी जलाते हुए, भूसा पुआल सारी चीज़ें जलाते हुए देखे हैं, और साथ ही साथ हमने गैस, नेचुरल गैसेस, CNG गैसेस, कोयला, पेट्रोल सबको जलते हुए और उसका इस्तेमाल हमने देखा है। सो ऑल दीज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्यूल। बट देन देयर इज़ आइडियल फ्यूल। यू नो द आइडियल टर्म मीन्स अ लॉट। आइडियल फ्यूल क्या होता है? सो लेट अस डिस्कस कि आइडियल फ्यूल क्या है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आदर्श किस किस तरह से? आई एम सॉरी, आइडियल का मतलब आदर्श होता है, यानी कि एक फ्यूल जो आदर्श हो उसको कुछ कैटेगरीज में से गुजरना पड़ता है, तभी ये जाके आइडियल होता है। तो हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आइडियल होने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए एक फ्यूल में। एक फ्यूल तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है? हाई होनी चाहिए। किस चीज़ की वैल्यू? कैलोरी की। तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कैलोरी होता है यूनिट किस चीज़ का? दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी चाहे वो किसी भी रूप में हो, यूनिट होती है एनर्जी की। यहाँ पे हीट हो, लाइट हो, किसी भी तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे कैलोरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यदि कैलोरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़े से अमाउंट के फ्यूल को हम जलाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को एज अ डेफिनेशन हम उसको कैसे बोलते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी obtained by burning 1 kg of a फ्यूल। ठीक है ना? तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने के बाद किस फ्यूल से कितनी एनर्जी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। एंड ये कैलोरीफिक वैल्यू बताता है कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है। एंड वी ऑल नो, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आइडियल फ्यूल उसी को कहेंगे जिसको 1 kg जलाने में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू या हीट एनर्जी मिले। क्लियर हो गया? सो इसकी आइडियल होने का पहला कैटेगरी है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना? दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, एंड दैट इज़ कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या होता है? लेट अस डिस्कस दिस कि ये कंप्लीट कंबशन क्या होता है। हर एक पॉइंट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन वाइज। कंप्लीट कंबशन हम किसको बोलते हैं? यदि हम किसी एक फ्यूल को हम जब इग्नाइट करते हैं या कंबस्ट करते हैं, कंबशन करते हैं या जलाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ये होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्लस बहुत सारा हीट एनर्जी
प्लस लाइट एनर्जी। यदि ये किसी में मिलता है तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। कंबशन करने का मतलब होता है कि पूरी तरह से किसी भी फ्यूल को पूरी तरह से जला देना, ताकि उसके कंपोनेंट्स जो हैं अब वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या इससे ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट अब बन ही ना पाए। सो कंप्लीट कंबशन का बस ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि कंप्लीट कंबशन तभी होता है जब फ्यूल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज़ करता है। याद रहेगा आपको बेटा। And then the third point we can see here, the third point is low ignition temperature. Ignition temperature. Now come here, the third point is low ignition temperature. Low, IGNITION, ignition temperature. ये लो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन क्या होता है? इग्निशन का मतलब पहली चिंगारी, यानी कि the minimum temperature required by a fuel to burn। ठीक है ना? एक मिनिमम टेम्परेचर किसी फ्यूल के द्वारा रिक्वायर हो बर्न करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा गैस को हम जलाने जाते हैं तो बर्नर को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हम एक छोटी सी लाइटर लेते हैं और लाइटर की एक छोटी सी चिंगारी, दैट हैपन्स टू बी द इग्निशन पॉइंट। ये छोटी सी चिंगारी जो है वो हमारा गैस मतलब बर्नर जो है वो जला देती है, और हम कितना भी कैलोरीफिक एनर्जी उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा होता कि मान लो एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा लॉग हो और उसको जलाने के लिए पहले तो हमें उसको जलाने के लिए ही बहुत सारा ईंधन जलाना पड़ता, तब जाके वो लॉग जलता। तो इसको लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं बोल सकते हैं। तो इग्निशन पॉइंट या टेम्परेचर क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय अ फ्यूल टू बर्न कम्प्लीटली। सो दिस इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। और सारे डेफिनेशंस आप ज़रूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो ये इग्निशन टेम्परेचर है। एंड और उससे भी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, दैट द आइडियल फ्यूल हैज़ टू बी चीप। ऐसा नहीं कि अभी देख रहे हो जैसे पेट्रोल के और डीजल के या एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 1100,000, तो इससे लोगों को थोड़ा सहूलियत नहीं होती है। सो आइडियल फ्यूल वो होता है जो कि कम मास पॉपुलेशन जो है वो एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके। सो दैट हैज़ टू बी चीप एंड हैंडी। ये नहीं कि एक टाइम का खाना बनाने के लिए एक बोरी लक्कड़ या एक गट्ठर कंडे की ज़रूरत पड़ती है, देन उसको हम आइडियल फ्यूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंडी नहीं है। बहुत सारा कैरी करना पड़ता है, बहुत सारा जलाना पड़ता है, फिर इसका कंप्लीट कंबशन हो नहीं पाता है, पूरी तरह से जल नहीं पाता है, इसीलिए ये सूट छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे सांसों की बीमारी देने के लिए बहुत अच्छा एजेंट होता है। सो कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आइडियल फ्यूल? सो एक बार और रिविजन कर ले। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू या एनर्जी वैल्यू हाई होनी चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कंप्लीट कंबशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होना चाहिए हीट और लाइट एनर्जी के साथ। इग्निशन टेम्परेचर यानी उनको जलाने का टेम्परेचर बहुत मिनिमम होना चाहिए। ये सस्ता होना चाहिए और हैंडल करने में आसान होना चाहिए। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर। नाउ ये फ्यूल जब हम जान गए तो इन्हीं फ्यूल की का हम ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम प्रकृति में कितने कितने रूप में पाते हैं। तो एक्चुअली हमने जहाँ पे ब्लू कलर डाला हुआ है, यू कैन सी योर फर्स्ट यहाँ है, दैट इज़ जस्ट वेट, फर्स्ट यहाँ है दैट इज़ कोल, एंड सेकेंड इज़ द पेट्रोलियम, एंड देन थर्ड इज़ द नेचुरल गैस, राइट। तो यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीन तरह के फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। तीनों कैटेगरी के फॉसिल फ्यूल हमें आसमान में या धरती के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के अर्थ क्रस्ट के नीचे या इवन समुद्र और ओशियन के बेड में मिलते हैं, यानी कि ज़मीन सतह के नीचे मिलते हैं। उनमें से सबसे कॉमन जो है, जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड जो फॉसिल फ्यूल है दैट इज़ आर कोल। सो कोल जो होता है, कोयला जो होता है, एक
जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको रिकमेंड कर, ये देखिए आप ज़रा, मैंने आपके लिए रिकमेंड किया है। दे आर द कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये किस रूप में मिलता है? ब्राउन या ब्लैक कलर के सेडिमेंट्री रॉक के रूप में मिलता है। इसी को तोड़ के इसमें से कोयला निकाला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ कोयले का बनना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, दैट नीड्स टू बी लर्नड, बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंड देन यू शुड नो इट। ये क्या होता है कि सदियों से स्वैम्पी फॉरेस्ट्स का किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से धंस जाना, ठीक है ना, भूकंप की वजह से या किसी और नेचुरल कैलामिटी की वजह से धंस जाने के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे बड़े अमाउंट में लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड. They were covered with the bed of rocks, and they remained there for thousands and 10,000s of years, undergoing a gradual slow process change under high pressure and high temperature. ये दो कंडीशंस के में जब बरीड फॉरेस्ट सड़ते रहेंगे, नीचे कंप्रेस होते रहेंगे और इनका प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन चलता रहेगा, देन दे विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक सॉलिड दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक सॉलिड फ्यूल दैट इज़ कॉल्ड कोल, राइट। तो ऐसे कोल बनता है, आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंड नाउ कोल जो होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग जानते हैं, बहुत शुरू से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि कोयला जो होता है खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। इंजन में इंजन को, यानी कि वो जो ट्रेन का इंजन है, सबसे पहला जो ट्रेन के इंजन्स थे वो भाप से चलते थे, और भाप जो होता है वो कोयले से ही गर्म होके बनता है। एंड देन थर्मल पावर प्लांट्स, आज भी जो प्रोमिनेंट एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलती है वो थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा ही मिलता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कोल। नाउ कोयला जो होता है उसको 3 ब्रॉडर कैटेगरी में बांटते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द कोक, द कोल तार एंड द कोल गैस। जितना हमने इसके बारे में पॉइंट लिखा है, यू नीड टू स्टडी ओनली दैट पोर्शन, and we can start with the coke. We can see that the coke क्या है, एक टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। एंड आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये कोक जो होता है ना, ये कोयले के सबसे बड़ा वरदान है, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मेटलर्जी इंडस्ट्री है उसमें ये काम आता है। बहुत सस्ता और बहुत चीप होता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो आप क्लास 10th में जाएंगे तो एक बार और पढ़ेंगे। तो ये टफ़ होता है, पोरस होता है और ब्लैक होता है। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसका काम होता है स्टील के इंडस्ट्री में, जो स्टील कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे आयरन को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर में से, यानी कि गंदगी छांट के उसके कंपाउंड्स में से प्योर आयरन निकाला जाता है उस वाले इंडस्ट्री में। और मेटल्स को उसके ऑक्साइड से निकालने में, जैसे जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना, लेड ऑक्साइड से लेड निकालना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकालना, इन सब में इस कोक का बहुत हेल्प होता है। सो कोकिंग एंड कोल लिमिटेड जो है, दैट इज़ अ वाइड इंडस्ट्री, नेशनल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारा कंट्री भी है वो कोल का बहुत बड़ा बेल्ट है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कोल तार, ठीक है ना। तो कोल तार इज़ ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल। ये क्या होता है कोल तार? अलकतरा आपने देखा है जिससे सड़कें बनती हैं, तो दैट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। उसका स्मेल बहुत ख़राब होता है, लेकिन ये क्या हम उसको बोल सकते हैं, लिक्विड गोल्ड है, क्योंकि इसके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का काम चलता है। सो इसके अंदर में दैट कोल तार इटसेल्फ इज़ द मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस। और ये मतलब ये जो है कोल तार जो है, कोल तार या अलकतरा जो है वो किस में काम आ सकता है? तो ये डाइज इंडस्ट्री में काम आ सकता है, ड्रग्स में काम आ सकता है, पेंट्स के इंडस्ट्री में एंड परफ्यूमरी में इसका इस्तेमाल होता है। ओनली मटेरियल इज़ देयर दैट यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, राइट। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ कोल इज़ द कोल गैस। कोल गैस जो है वो कोक बनाने के प्रोसेस के दौरान ये वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ये निकलता है।
ठीक है ना। तो जब प्रोसेसिंग का मतलब होता है बनाना, तो जब कोयले से कोक बनाया जाता है उसी समय कोल गैस भी साथ में निकलता है। इसका इस्तेमाल होता है कि ये इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्री जो कोयले से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है उसमें ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी कि जलावन के रूप में, ईंधन के रूप में ये इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट coal, right? And the next part is the petroleum. Let us see the petroleum. Petroleum again is the product which naturally occurs by the burial of dead and decomposed marine organisms and plants under the seabed. सी बेड के अंदर में जो मेराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो दबे हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ द सुनामी और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी। एक वाइड एरिया जो होता है वो दबा हुआ रहता है सी बेड के नीचे, और उसके ऊपर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंप्रेशन बना हुआ रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी सप्लाई ना के बराबर रहती है, एंड इन दैट सिचुएशन अ लिक्विड is obtained and this fluid or liquid is called petroleum. ओके, पेट्रोलियम जो होता है उसके साथ कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है पेट्रोलियम जो होता है ना, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल मटेरियल्स जो कि अपने अलग अलग टेम्परेचर और डेंसिटीज़ के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इन द फैक्ट्रीज दे आर कॉल्ड द रिफाइनरीज़। रिफाइनरीज़ में क्या होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना वो अपने टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण अलग अलग लेयर्स में बंट जाते हैं, और वो अलग अलग लेयर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यू कैन सी हियर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ रिटन ओवर हियर। सो ये पेट्रोलियम का अलग के कंपोनेंट्स को अलग करने का तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। एंड आप मैप में दिखा सकते हैं कि हमारे देश में, कंट्री इंडिया में जो मेजर ऑयल रिफाइनरीज और जो मेजर पेट्रोलियम बेड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, दैट विल एड टू योर नॉलेज, राइट। एंड देन द टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिला है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, वी ऑल नो, वी हैव, हमारे लाइफ में इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फैमिलियर टू अस, दैट इज़ द पेट्रोल जो कि एविएशन से लेके मोटर फ्यूल और ड्राई क्लीनिंग तक इस्तेमाल होता है। देन द पैराफिन वैक्स, कैंडल और वैसलीन, क्रीम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। डीजल, हैवी व्हीकल्स, जनरेटर, मोटर चलाने में काम आता है। केरोसिन, आज भी गांव में अभी तक भी लैंप और फ्यूल और स्टोव्स को जलाने में काम आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, हर तरह के गाड़ी इंजन के जो ऑयल्स होते हैं, ग्रीजिंग होती हैं, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल से ही बने हुए रहते हैं। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ ब्यूटिमेन। ब्यूटिमेन जो है वो प्रोडक्ट होता है पेंट को गाढ़ापन देने के लिए और रोड के सरफेसिंग को करने के लिए इस्तेमाल होता है। द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट पेट्रोलियम इज़ दिस। आर यू फाइन विद दिस? आपको ये याद करना पड़ेगा, ये इसके यूजेस क्या क्या हैं, राइट। एंड पेट्रोलियम के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा। दीज आर द कंपोनेंट्स। The last component is the natural gas. So natural gas is the third most important and the cleanest source of energy. Natural gas जो होता है, natural gas, 1 minute. So natural gas जो होता है वो cleanest source of energy होता है, क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ये पोल्यूशन नहीं करता है। एंड एवरीबडी हैज़ एक्वेंटेड विद द यूज़ ऑफ LPG सिलेंडर्स एट आवर होम, कि ये कितना कम धुआं पैदा करता है या कितना कम परेशानी होता है घर में मम्मी को या मदर्स को या कोई भी घर में कुकिंग करते हैं तो उनके लिए है। कोई धुआं नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट नहीं होता है उसको जलाने के लिए, हमें सब फूकने के लिए। सो दे आर द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, बहुत कम बाई प्रोडक्ट गैस रिलीज़ होते हैं।
तो ये भी बनते हैं ठीक उसी कंडीशन में जैसे कि पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह से भी की तरह ये भी समुद्र के अंदर, ठीक है ना, या कभी कभी ज़मीन के अंदर भी, रॉक बेड्स के अंदर में ये डिकम्पोज होते रहते हैं हज़ारों लाखों साल तक एयर के एब्सेंस में, ठीक है ना, और इसके ऊपर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन बरकरार रहता है। एंड इन दैट सिचुएशन we get the product that is called natural gas, air under condition of high temperature and pressure। और इसके दो मेन जो गैसेस होते हैं, दैट इज द CNG एंड LPG। यू मस्ट बी नोइंग द फुल फॉर्म ऑफ CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas। They are very cleaner source of energy, high calorific value, and amongst all these energy sources which we have seen there in the category of fossil fuel, the natural gases are the highest calorific value containing fuel। So petroleum reserves जो होते हैं वो बहुत limited होते हैं। इनके लिमिटेशन की वजह से और बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से जुडिशियल यूज़ जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी है मैनकाइंड के लिए, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ रिसोर्सेज छोड़ के जाएं। अदरवाइज़ वी ऑल नो दैट इट रिक्वायर्स हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स of waiting to get these materials replenished back to earth। So judicious use of coal and petroleum is very very important। There are some organization that check the quality, check the consumption of the petroleum, that is called PCRA, Petroleum Conservation Research Association है। ये सारी चीज़ें आप just go to the textbook, you will get to learn that। And the most important part is the pollution that is caused by the coal and petroleum। So we have to be very judicious in choosing the type of fuel we are choosing for the purified air that we breathe in, and that is why we have to be very specific while we are using the resources, energy resources। So this is all about this chapter। It was in a bit hurry, but I hope every topic is being covered, and rest we will see in the next chapter। Bye bye, thank you।